Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 2nd September 2020. So let us see which are the important articles in today's newspaper. So these are the important articles for prelims purpose and for mains purpose we have segregated them. So let us see one by one and take input for our examination. So first article on page number 6. In Kashmir, still long way to go. A very good article that is written by M.K. Narayan, who is former National Security Advisor. Okay, so the article is completely discussing how the discussion, let's say, decision of the government on 5th August 2019 changed the course of Kashmir state by abrogating different articles in the constitution and then changing its status, special status. ठीक है, तो उसको बाइफर्केट करके उन्होंने यूनियन टेरिटरीज जो बनाया है. The decision that is taken here, the manner in which the changes were effected caused a great deal of dissonance. So now the article is, let's say, discussing whether the intended purpose of the government to take such decision has been achieved or not, and what should be the way forward. That is the article is talking about. For example, you can see here, the move of on J&K was unexpected, closest parallel possibly being the demonetization. In both instances, the decisions were, let's say, taken in utmost secrecy, leaving no scope for discussion, debate और retreat. ठीक है, बहुत ही secrecy में decision लिए जाते हैं या फिर बहुत fast decision लिए गए without any much debate discussion. हमने देखा है कि कैसे एक ही दिन में वो पार्लियामेंट में बिल पास किए जाते हैं and all. Okay, the intended objectives of bringing Kashmir into the national mainstream, reducing the level of violence within the union territory and expansion of jobs and economic opportunities are still to happen. तो ये जो intended objective था वो अभी तक हम बोल सकते हैं कि complete नहीं हुआ है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ वायलेंस कंटिन्यू टू बी हाई ऑल एक्सेप्ट वी कैन से दैट एलिमिनेशन ऑफ सम टॉप लीडर्स ऑफ टेररिस्ट आउटफिट्स लाइक हिजबुल मुजाहिदीन. The incarceration of several senior political leaders for several months under various provisions of the law, we can say that it has undermined the faith in the center's commitment to an early return to orderly political discourse. तो ये हम बोल सकते हैं कि problematic है. Unless and until the normalcy returns in terms of political discourse, there will not be normalcy in overall, let's say, day-to-day working of the state also. ठीक है, former Supreme Court of India, let's say, judge जस्टिस मदन लोकुर का जो एक आर्टिकल था हमने देखा था द हिंदू में डिस्कस करते वक्त, हाउ द वायलेशंस रिगार्डिंग दिस, लेट्स से, इन्वोकिंग ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन कश्मीर, हाउ इट लीड्स टू और अमाउंट्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन. तो वो भी उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि इवन अ फॉर्म ऑफ हाउस अरेस्ट is the matter of grave human rights concern. Fine. So other major concerns have been like difficulty faced by populace in accessing information following the snapping of high speed internet connection. Especially students are facing problem. ठीक है, जैसे कि सिंपली हम देखते हैं कि जो यूपीसी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2-3 स्टूडेंट मेरे भी कांटेक्ट में है, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 4G इंटरनेट नहीं है सर, बहुत दिक्कत आती है पढ़ाई करने में, वीडियो स्ट्रीम करने में. ठीक है, कोई भी क्लासेस का या कोई भी चीज़ का जो ऑनलाइन पढ़ाई करनी है अभी राइट नाउ, तो वो दिक्कत आती है. तो इन जनरल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम हुआ है बिकॉज ऑफ, लेट्स से, लैक ऑफ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट. Latest notification allows non-locals to apply for domicile certificates. Now this has been again the new problem, like outsiders, threat of outsiders to settle in the state and taking, let's say, land also, or we can say the employment opportunities also. So that has been again the concern. And what should be the way forward? Here the article is saying that, or the writer is saying that, bringing back or restoring normalcy should be an urgent priority. This is the main aspect here. फॉर एग्ज़ाम्पल जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनको इमीडिएटली रिलीज़ करना, और जो है इंटेंस डिबेट होना चाहिए. डिबेट मस्ट स्टार्ट टू वेयर वी गो फ्रॉम हियर. इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर द इनिशियल 1 year हैज़ बिकम इसेंशियल. ठीक है, कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो सही है कि नहीं, इस पर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए. रादर दैन वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग आर्म पॉपुलिज्म हैज़ इट्स ओन लिमिट्स. ऐसा उन्होंने एंड में स्टेटमेंट कहा है यहाँ पे.
ठीक है, तो ऐसे इनपुट्स ले सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। क्रिटिकली एनालाइज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, critically analyze the decision of the government on abrogation of special status of Jammu Kashmir। तो critically analyze मतलब हम देख सकते हैं कि ये हमने जो अभी एनालिसिस किया है यहाँ पे critically analyze and we can give the way forward also। Fine, yes। So moving on to next article, very important development। Supreme Court has given 10-year time period to, let's say, pay the AGR dues to the government। Now AGR is adjusted government revenue। ये बहुत दिनों से केस चल रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यू टू द ड्यूज टू द गवर्नमेंट। अभी जो है उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था कि 20 साल उनको देते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पिछले साल कि 3 महीने में आपको सारे के सारे ड्यूज देने पड़ेंगे। ठीक है, बट अभी उन्होंने बाय कंसिडरिंग, लेट्स से said that it changed its mind into considering financial stress and the involvement of banking sector। हम देख सकते हैं कि NPS बढ़ सकते हैं, सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। The credit lending ability of banks may get hampered because of that। So that's why the court took the lenient stance here and gave 10 years। Now every year the equal amount should be paid as an installment by these telecom companies। Okay, so first of all we need to understand for that purpose in terms of basics what do you mean by AGR और उसका background क्या है। ठीक है, तो AGR क्या है ये देख सकते हैं आप। It is the amount that is telecom operator are required to pay as a license fee and spectrum charges in the form of revenue share। ठीक है, तो जो revenue sharing model जो किया हुआ था टेलीकॉम कंपनीज के साथ में, तो वो जो है यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को पहले तो लाइसेंस दिए गए थे नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 के द्वारा, but to provide the relief from steep fixed license fee, the government in 1999 gave the option to the licensees to migrate to the revenue sharing fee model। तो इसके हिसाब से जो है रिवेन्यू शेयरिंग करने का उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब वो रिवेन्यू शेयरिंग में एक क्लॉज क्या है कि जो लाइसेंस उनको दिया था वो टेलीकॉम ऑपरेशंस के जो चार्जेस है यहाँ पे देख सकते हैं। Under this, the mobile telephone operators were required to share the percentage of AGR with the government as an annual license fee (LF) and spectrum usage charges (SUC। ये देना था। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो टेलीकॉम कंपनीज जो बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, बट वो जो बोल रहे हैं कि वो जो AGR कैलकुलेशन का जो इशू है, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको स्पेक्ट्रम के अलावा जो कुछ भी और रिवेन्यू मिला है दूसरे प्रोडक्ट्स के द्वारा, वो भी रिवेन्यू आपको शेयर करना पड़ेगा। हाउएवर टेलीकॉम कंपनीज वर सेइंग दैट वी विल ओनली शेयर व्हाटएवर द रिवेन्यू दैट हैज़ बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसमें बेसिक्स के रिलेटेड। ओके, तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी ये सेटल हो चुका है हम बोल सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, प्रोएक्टिव एक्शन बाय PLA अगेन। तो अभी एक हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नाउ। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि यस, चाइनीज ट्रूप एंगेज्ड इन प्रोवोकेटिव एक्शन along the disputed boundary in the Ladakh once again on 31st August। तो 30, 31st और 29 को ये तीनों दिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोवोकेटिव एक्शन है PLA के द्वारा इन द पोंगयांग लेक जो है, पोंगयांग सो लेक जो बोलते हैं हम। ठीक है, तो उस साउदर्न बैंक ऑफ दैट लेक देयर हैज़ बीन, लेट्स से, अटेम्प्ट्स टू or provocative actions by the PLA in that region। Now the simultaneous development, we can say that the India aims to balance with a slew of multilateral meanings। Balance with China, we can say here that the Defense Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister Jaishankar will meet their Russian and Chinese counterparts next week in the Shanghai Cooperation Organization meetings SCO। ठीक है, जब मीटिंग होगी तब हम SCO के बारे में डिटेल में देखेंगे, तब ये न्यूज़ में आएगा डिटेल में। ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि इंडिया इज, लेट्स से, हैविंग फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग चाइना विद द हेल्प ऑफ मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स जो अभी रशिया के साथ होने वाला है।
ठीक है, ऑन द SCO प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पाकिस्तान भी इन्वॉल्व रहेगा. Okay, but there were no, let's say, bilateral talks to be happening at that let's say SCO meeting, along the SCO meeting, except Russia. ठीक है. तो at the same time New Delhi is planning to host American counterparts for Indo-US 2+2 टॉक्स. तो 2+2 टॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर्स इनके साइमल्टेनियस टॉक्स होते रहते हैं. इसको 2+2 बोलते हैं. At the same time, the foreign ministers meetings of the Quad, including Australia and Japan, in October is to be held. ठीक है, तो वो एक हम बोल सकते हैं क्वाड का भी मीटिंग होने वाला है फ्यूचर में. ये मल्टीलैटरल टॉक्स हम बोल सकते हैं होने वाले हैं. तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि रशिया और चाइना का जो ग्रुपिंग है उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट जो दूसरा ग्रुपिंग बन रहा है, क्वाड ग्रुपिंग है या यूएस जैसे उसके अगेंस्ट है चाइना के, उनके साथ भी हम बात करने वाले हैं. देन विल सी how the development take place in coming, let's say, months, September, October में देखते हैं क्या होता है. Fine? Yes. So we will have follow up on this. Next is Turkey renews call for talks sharing the resources with Greece. Now we have been, let's say, following up here. There has been, let's say, built up, or we can say, standoff between Turkey and Russia in the East Mediterranean region. Now East Mediterranean region हम देखते हैं इसके बाद मैप में, but before that let us try to understand what is the new development. Turkey's foreign minister said the country favors the dialogue with the rival Greece that would let's say lead to fair sharing of resources in the Eastern Mediterranean, where the two countries are locked. A tense standoff between, let's say, threatens to spill into conflict. तो ये है. दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन which has threatened sanctions against Turkey because Greece, which is the member of EU, claims to have, let's say, water of parts of continental shelf and has enlisted its support of 27 nation bloc, that is European Union. तो ग्रीस को जो है यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट है, एंड EU has threatened to, let's say, have sanctions against the Turkey. Now therefore the Turkey stance somehow soften. We can talk about that. Okay. So Turkey disputes with Greece claims that waters where it's searching for hydrocarbons are part of Greece's continental shelf, insisting that the Greek islands near the Turkey's coast cannot be taken into account when delineation maritime boundary. तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, अभी आप जब मैप देखोगे तो आपको दिखाई देगा. तो आप इस मैप में देखिए. So when we look at this map, so this is the eastern Mediterranean part wherein we can say that which is a resource rich gas, oil and gas reserves यहाँ पे हम बोल सकते हैं. आप देख सकते हैं ये टर्की है, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रीस, और ये ग्रीस का एक छोटा आइलैंड क्रीट, CRET. तो यहाँ पे ये इस रीजन में जो है वहाँ पे इन दोनों का क्लैशेस हो रहा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ लेट्स से पोटेंशियल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स. सो यू कैन सी हियर ग्रीस के जो छोटे आइलैंड्स है वो टर्की के कितने नज़दीक है. देखिए यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे आइलैंड जो है ये टर्की के नज़दीक है. So that's what the Turkey is saying, that these islands should not be considered as, let's say, the mainland boundary of the Greece to, let's say, map or delineate its EEZ. जो हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, तो वो जोन, मैरीटाइम जोन जो है वो ऐसे इसको आप लेके डिलीनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे टर्की कह रहे हैं. ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट है, मैरीटाइम डिस्प्यूट इन दोनों का, नाउ दैट हैज एस्केलेटेड बिकॉज ऑफ, लेट्स से, डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन दैट ईस्टर्न Mediterranean region. Now for our examination, for prelims purpose especially, the UPSC has been asking the world mapping part in this region from time to time. तो देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन सी को कौन से कंट्रीज जो है बॉर्डर करती है. जैसे टर्की है, ग्रीस है, या इजिप्ट है, या लीबिया है. ये तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है. बट जो हम बोलते हैं मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ कौन सी है, तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे इज़राइल है, दिस इज़ हैविंग बॉर्डर विथ लेबनान विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दैट ब्लास्ट, है ना, जो स्टोर किया गया था फ्यूल, अमोनियम फ्यूल जो था, तो बैरूट में जो हुआ था, तो दैट इज़ अगेन हैविंग द बॉर्डर विथ वी कैन से मेडिटेरियन सी. सीरिया इज़ हैविंग बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी. Only Jordan, we can say that in this region, is not having
बॉर्डर, दिस इज लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि जॉर्डन नहीं है, या फिर यूरोपियन यूनियन में जो है बल्गेरिया जो है इसका नहीं है। बाकी छोटी मोटी कंट्रीज़ है, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इटली बॉर्डर है मेडिटेरियन सी से, हमें पता है वो। फाइन, तो ज़्यादातर पूछा जाता है इसी रीजन का, जो भी पूछा जाता है आपको वर्ल्ड मैपिंग का मेडिटेरियन सी से, इस रीजन का पूछा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आके गया हुआ है। सो अगेन वी विल ट्राई टू सॉल्व द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर नाउ एज अ सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्की का है, ग्रीस का है, जॉर्डन इज लैंडलॉक कंट्री, लेबनान का है और सीरिया का है। सो दैट्स वाई द आंसर इज 1 2 4 5। फाइन, सो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, वर्ल्ड मैपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए डेली प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया एंड रशिया टू होल्ड नेवल ड्रिल्स इन अंडमान सी। So what are the highlights here? Highlights like amid the high operational alert that we have by the Indian Navy in that region, the Indian Ocean region, due to ongoing standoff between China in Ladakh. So India and Russia are scheduled to hold the bilateral naval exercise Indra 2020. So Indra, India, Russia, ठीक है, तो ऐसे इसलिए नाम गिरा हुआ है, हम बोल सकते हैं 2020। ठीक है, सो इन अंडमान सी क्लोज टू स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का लेटर दिस वीक, मतलब इसी वीक में हम ये एक्सरसाइज होल्ड करने वाले नियर द अंडमान सी क्लोज टू स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। हम पता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का विच एंटर्स इनटू साउथ चाइना सी, so that is having very much strategic location. This is the first bilateral naval exercise since all engagements were suspended because of COVID-19, and it also came just after India withdrew from the Caucasus 2020. कल ही हमने देखा ये डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया था Caucasus या Caucasus 2020 से, we let's say took back our decision, withdrew our let's say decision to participate in that exercise which was scheduled in later September। ठीक है, तो नोट यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दूसरा पता होना चाहिए कि इन जुलाई we also conducted a similar kind of activities or let's say maritime exercise, passes exercise, ठीक है, PASEX, with US let's say aircraft carrier USS Nimitz. Now this USS Nimitz was returning back from South China Sea after conducting let's say freedom of navigation operations। हर साल वहाँ पे US कंडक्ट करता है, कहाँ पर, साउथ चाइना सी पे। तो वो रिटर्न जा रहा था, तो जाते जाते इंडिया के नेवल शिप्स के साथ उन्होंने पासिंग एक्सरसाइज और पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। ठीक है, तो ये भी एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए रिसेंट डेवलपमेंट से। सो वॉट एवर द मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वेदर इट इज़ लेट्स से आर्म फोर्सेस और विथ आर्मी और नेवी और एयर फोर्सेस, वी हैव टू लेट्स से नो अबाउट दैट बेसिक्स कि कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, वो एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुआ था, वेदर इट इज़ एनुअल और बायएनुअल एक्सरसाइज। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, और दिस ईयर वो कहाँ पे हुआ है। फाइन, यस, तो ये एक चीज़ आपको पता नहीं। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट डेटा वी हैव टू नो फॉर लेट्स से फॉर आवर एग्जामिनेशन, जैसे एसए है या बाकी जीएस के पेपर्स में ऑप्शनल में आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो ये जो रिकॉर्ड्स ब्यूरो सॉरी, तो उनका एनुअल जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हुआ है, एंड दैट इज़ गिविंग सम फैक्ट्स हियर। तो वो फैक्ट्स क्या है कि नंबर ऑफ सुसाइड केसेस एंड एक्सीडेंटल डेथ्स रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज्ड लेट्स से फ्रॉम लास्ट ईयर 2018। ठीक है, तो 2019 में बढ़ गए सुसाइड्स और एक्सीडेंटल डेथ। तो सुसाइड इन द कंट्री वेंट स्लाइटली अप, देख सकते हैं आप, एक साल में इतने सारे लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड रेट इन सिटीज इज मच हायर एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज। देन वी कैन से दैट महाराष्ट्र रिपोर्टेड द हाईएस्ट डेथ अमाउंटिंग टू नियरली 1/6 ऑफ द टोटल फिगर। एक्सीडेंटल डेथ जो है इंक्रीज्ड बाय 2.3%। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मेजर कॉजेस इन द एक्सीडेंटल डेथ्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, सडन डेथ्स, ड्राउनिंग, पॉइजनिंग, फॉल्स, एक्सीडेंटल फायर्स, या फिर नेचुरल अगर देखते हैं कि फोर्सेस ऑफ नेचर का,
तो 35% जो है वो लाइटनिंग की वजह से इस बार हुआ है, सन और हीट स्ट्रोक, और 11% जो है फ्लड्स की वजह से। ये 2019 का डेटा है, 2019 का, ठीक है। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट रिलीज होता है, गवर्नमेंट का डेटा रहता है, सो वी कैन टेक इट एज ऑथेंटिकेट डेटा, सो वी कैन मेंशन दिस डेटा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जैसे आप ये नेचर का फोर्सेस के बारे में बताना है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में बताना है, सुसाइड्स के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बताना है, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट सपोर्टिंग फैक्ट्स के द्वारा ले सकते हैं। फाइन, सो दिस वाज about today's The Hindu newspaper. Try to take input for our examination GS 123 essay paper along with your optional subject. For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these articles or mains related especially issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IS. Thank you.